Respected Chairman of WRC Manish Bhai, respected past President of ICI Praful Bhai, past Chairperson Preeti ji, and all the dignitaries, all Didi Jis, Brahma Kumari office bearers, I welcome you all on behalf of Mulund CP Study Circle for today's program. ये हमारा सबका सौभाग्य है कि बहुत सारे महानुभाव आज हमारे साथ उपस्थित हैं। इन सबके लिए दो शब्द पहले मुलुंड सीपी स्टडी सर्कल के लिए। हमारा सीपी स्टडी सर्कल चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के लिए है। अराउंड 700 मेंबर्स हैं। हम रेगुलरली महीने में 2 प्रोग्राम चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई बहनों के लिए करते हैं और लास्ट 11 साल से हम लोग ब्रह्म कुमारी सेंटर के साथ मिलके एवरी ईयर पोस्ट दिवाली एक प्रोग्राम करते हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं विपिन जी का। उनकी अथक मेहनत से ये प्रोग्राम हम लोग लास्ट 11 साल से कर रहे हैं और आशा है हम ये करते रहेंगे आगे भी। और ये प्रोग्राम में हमको ब्रह्म कुमारी सेंटर के बड़े बड़े लोग विपिन भाई कनेक्ट कराते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है। With this small welcome note, what I request first, I request Manish ji, chairperson of WRC, to share few words with us. Manish ji, I welcome you on behalf of Mulund CP Study Circle members. Okay. Thank you, Himanshu bhai, first of all inviting me here, and respected Praful Chajat ji, past president of ICI, my guide, philosopher and friend, I should say, vice chair, deputy convener forum, Vipin ji, who is organizing this meeting since last 11 years continuously after Diwali, and every time he used to invite me for this meeting. So thank you, Vipin ji, for that. And I also thank all the office bearer of Brahma Kumari for continuously supporting and guiding members of the Mulund Study Circle. And it is the best way to connect on the just after Diwali, some spiritual thing to be discussed. So really it's great. And I know that Mulund Study Circle जो है वो one of the oldest study circle and vibrant study circle है WIRC का, जहाँ पे भी हमको कहीं पे भी कुछ भी जरूरत लगती है, whomsoever may be convener, if WIRC calls them, so immediately they are proactively available to the work of WIRC. And I hope the same trend will continue in future also. And the most awaited program of this study circle is, of course, this program, and after this the RRC, so which they are also in the process of organizing. So it's really a great thing. And I have an association with this study circle since long. So before pandemic, they used to call me as a speaker, but after pandemic, everything is now on virtual. So I'm missing visiting physically the Mulund Study Circle, and I hope to soon visit this study circle, probably in the calendar year 2021. So thank you very much. And again, over to you, Himanshu bhai. मनीष जी, आज ही हम लोग ने डिसाइड किया फिजिकल मीटिंग, सो आई इनवाइट फिजिकल मीटिंग हमारा थर्सडे 18 नवंबर को है. इफ टाइम परमिट, योर अवेलेबिलिटी इज देयर, आई विल सेंड द इनविटेशन. फर्स्ट फिजिकल मीटिंग ऑफ दिस ईयर, I will invite you. It is on 18th. You just finalized. I will send the invitation, sir. And always all WRC chairman का हमको जो support रहा है, हम आशा करते हैं आगे भी हमको मिलता रहेगा. Thank you, sir. Thanks a lot. हमारे साथ प्रफुल्ल जी भी है, past president ICI. वो भी regularly every year ये प्रोग्राम में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं. उनका आशीर्वाद हमको मिलता है. तो I request प्रफुल्ल जी, प्लीज आप दो शब्द, थोड़े वर्ड्स हमारे साथ शेयर करिए, आपका एक्सपीरियंस. प्रफुल्ल छाछड़ जी, प्लीज. थैंक यू कन्वीनर, डियर फ्रेंड हिमांशु भाई, डेप्यूटी कन्वीनर फोरम, चेयरमैन ऑफ द WRC Manish भाई, पास्ट चेयरपर्सन ऑफ द WRC प्रीति जी,
Today she is on mute because of code of conduct and all those things, as we are aware, and that is the spirit of the CA elections and everywhere, that every person who follows that in a letter and spirit. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा और वेलकम भी करूंगा मुलुंड की तरफ से भी और हम सब की तरफ से भी, जो ब्रिजमोहन भाई है, जो आज के वक्ता है, जो आज हमको एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो एनहांसिंग द इनर पावर। दोस्तों, अभी 2 साल से सारे लोग जूझ रहे हैं कोरोना की महामारी से, और ये सारे विश्व में जो एक चीज हुई है, उसमें सब लोग ने जब घर में बैठे आत्मचिंतन का थोड़ा टाइम मिला, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम वी वेर रियलाइज द पावर ऑफ द इनर पावर। और यही आत्मबल है जो बहुत लोगों को इसने एक शक्ति दी, मानसिक शक्ति दी। बिकॉज कोरोना एक ऐसी चीज अनफॉर्चुनेटली हो गई कि किसी को न किसी को, चाहे किसी के दोस्त को हुआ, किसी के फैमिली में हुआ, तो बड़ा एक अच्छा टॉपिक है। आई एम क्वाइट श्योर कि हम लोग आज के इस प्रवचन के बाद में, इस ज्ञान के इसके बाद में बहुत अच्छे से होंगे। आईसीआई का अच्छी अपन, आईसीआई मुलुंड स्टडी सर्कल, WIRC, हम सब लोग के नॉलेज पावर बढ़ाते हैं, बट कहीं ना कहीं ये इनर पावर की भी एक लाइफ में जरूरत होती है। और ये काम मुझे लगता है कि सारे स्टडी सर्कल में अगर कोई करता है तो मुलुंड स्टडी सर्कल करता है। और मेरे जो दोस्त है, मतलब मेरा छोटा भाई, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, विपिन भाई, मिनल बहन और बाकी सारे लोग जो मुलुंड के हैं, ये हर साल वो थोड़ा सा बैटरी को, पूरी तो नहीं चार्ज होती है बट थोड़ी थोड़ी रिचार्ज मेरी जरूर करवा देते हैं। एंड इट इज ऑलवेज प्लेजर। एंड मैं मुलुंड स्टडी सर्कल के सारे अभी के प्रेजेंट की दी कोर कमेटी, पहले की कोर कमेटी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम तो जैसे बंबई जैसे शहर में रहते हैं, कमर्शियल कैपिटल जिसको हम कहते हैं, सुबह हम लोग मुलुंड से निकलते हैं, चर्चगेट जाते हैं, ट्रैफिक में फंसते हैं, पोल्यूशन भरी जिंदगी में जीते हैं, और इस सब में कहीं ना कहीं वो मधुबन के गार्डन में एक हमेशा अपन एक दिवाली के बाद में ज्ञान का दिया लगाते थे। आज मैं उसको बड़ा मिस कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ का एक जो माहौल था, वो खाली मतलब लेक्चर का नहीं, बट एक जो एटमॉस्फेयर होता था, बाद में वो दिए जलाते थे, और सबसे अच्छा जो एक प्रसादी मिलती थी। तो मुझे लगता है कि विपिन भाई, अभी जैसा हिमांशु भाई ने बोला है कि वो फिजिकल मीटिंग अभी शुरू करने वाले हैं, तो एक और मीटिंग अपने इसी टॉपिक की एक अच्छे से स्पिरिचुअल भी हो जाएंगी। सब लोगों ने अभी दिवाली भी सेलिब्रेट किया है, नए साल के सबको जोश भी है, तो मुझे लगता है एक बार और फिर मौका लेके कोई शाम को अपने मिलने की जरूर कोशिश करेंगे। And before I hand over back to the convener, my compliments to the Mulund CPE chapter, because especially in the Mumbai city now, the chartered accountants are spread across, and it is the study circles which are connecting the members and the students with our alma mater, and therefore your role is very very important. And as Manish भाई ने जैसा बताया कि आप लोग हमेशा WIRC को सपोर्ट करते हैं, मुझे लगता है मनीष भाई और टीम पूरा बहुत अच्छे से WIRC के साथ काम कर रही है। एक साथ में हम लोग मिलके नेशनल लेवल पे अभी थोड़ी देर में अपने ICI प्रेसिडेंट भी ज्वाइन करेंगे, उनसे अपने करंट स्टेटस और बहुत सारी चीजें जो भी है वो हमको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं वो ICI एंगल से नहीं बोलता हूँ, बट मैं पर्सनल लेवल पे जरूर थैंकफुल, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू द एंटायर कोर टीम फॉर इन्वाइटिंग मी ईयर आफ्टर ईयर। और एक जीवन में बहुत बहुत मतलब एक आनंद आता है इस मीटिंग में आके। तो थैंक यू वेरी मच। आई लुक फॉरवर्ड फॉर द वंडरफुल वर्ड्स ऑफ विजडम दैट आर गोइंग टू बी शेयर्ड बाय रिस्पेक्टेड श्री ब्रिजमोहन भाई, जो हमको आज एक पूरा थोड़ा जो पावर के बारे में है, इनर पावर के बारे में, उसका ज्ञान देंगे। विद दिस, थैंक यू हिमांशु भाई फॉर डूइंग वंडरफुल जॉब। I see Sneha also on the screen and so many people. They are all my dear friends. Thank you so much. Over to back to the conveners. Namaskar. Thank you, Praful ji. Thanks a lot. Praful bhai, I also request if you can update about Wakao also to the members of Mulund Study Circle. You are chairman of Wakao. So meanwhile, president is also joined within 2-3 minutes. So if you can update, because Thank you. The flagship program of institute. Thank you Manish bhai for reminding me. दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द ICI हम लोग नेक्स्ट ईयर में 2022 में 18 से 21 नवंबर को वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। जैसे इंडिया में ICI है, वैसे ग्लोबल लेवल पर हम लोग की एपेक्स बॉडी जो है सारे इंस्टीट्यूट्स की, उसका नाम है IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। हर 4 साल में वो एक, जैसे ओलंपिक्स ऑफ अकाउंटेंट्स होती है, वो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। and it is our fortunate that for the first time India is going to host that,
and that too it is going to be held in the city of Mumbai. BKC में जियो में होगा, तो उसमें बहुत सारी तैयारी हमको करना है. 6,000 ऑडियंस का अपना टारगेट है. बहुत सारे हुज हू ऑफ द वर्ल्ड आने वाले हैं और उसकी तैयारियां अभी मतलब लास्ट वीक में ही फाइनलाइज हुआ, बिकॉज ये कोरोना की वजह से चल रहा था, हम करें नहीं करें, पोस्टपोन करें, कैसे करें. But last week only we had the final meeting with the IFAC, and now we are geared up to host this particular conference, and I'll definitely look forward for support of each and every member who has participated here, and especially from the all the core team of the study circles etc. because इसमें 6,000 delegates को welcome करना है, उनके लिए arrangements करना है, and बहुत सारी ideas मुझे लगने वाली है कि इसको क्या गिफ्ट दे, क्या थीम हो, क्या बैग दे, काउंटर्स पे कैसे खड़े होंगे, क्या होंगे. तो ये सारी जो टीम है, मनीष भाई, प्रीति जी, इनकी सबकी हेल्प लेकर मैं डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैविंग दिस पर्टिकुलर इवेंट एज द वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द IFAC. तो जैसे जैसे अभी समय जाएगा नेक्स्ट वन में मैं काफी सारा फिर से आपको अपडेट करूंगा. तो हिमांशु भाई और आने वाले कन्वीनर को भी मेरी रिक्वेस्ट है, भले मैं WRC चेयरमैन वगैरह नहीं हूँ, प्रेसिडेंट भी नहीं हूँ, बट इसके लिए मुझे इन्वॉल्व करते रहना, बिकॉज मैं बहुत सारा आप लोगों के टच में रहना चाहूंगा. थैंक यू सो मच एंड लुक फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. थैंक यू. Sure, Praful bhai. Thanks a lot, Praful bhai. We welcome President Niyar bhai. Thanks Niyar bhai for joining. ये हमारा सौभाग्य है सब मुलुंड CA लोगों का कि आप आज ये प्रोग्राम में ज्वाइन किए. वेलकम नियर भाई. मैं रिक्वेस्ट करूंगा नियर भाई को प्लीज ऑन करे वीडियो और 2 शब्द हमारे साथ शेयर करे. नियर भाई, अरे नियर भाई को अनम्यूट कीजिए नियर भाई को फ्रॉम आवर दिस थिंग. या हाँ, now it is there. Yeah, so it was not possible to talk. Okay, good morning everybody. Sorry sir. Yeah, good morning sir. Good morning. And the convener, deputy convener, all the council members, past president CA Praful ji, and respected Guruji, who will guide the chartered accountants today. Well, let me compliment you for consistently for more than 10 years organizing this post-Diwali meet and have a spiritual blessing of a Guru. And particularly in today's scenario, in last 2 years, the way the pandemic affected the entire world, and we were all locked down at our home, I think the psychology of many have been seriously impacted, and we need to really rejuvenate. Although the Diwali spirit and Diwali response of people shows that our country has come out from the grip of the pandemic, and even the positive mood and positive attitude towards business and life are now prevailing. So let me compliment each member for combating the pandemic successfully. And we, the chartered accountants, are again the first line warriors whenever there is any emergency on the country or on the mankind. We help people, we help country, we help our members and students, and at the same time we continue to carry on the economic activities during this period. And now that we are free of the pandemic almost, and the third wave is nowhere within the vision, within the visibility, we will progress at a faster pace. And today Guruji's blessings will be really very important for the chartered accountants. I once again thank you for making me the part of this event and inviting me to share my views for some time. And before I close, again I would repeat what Prafulji said, that this is a unique opportunity for our country to demonstrate and showcase our capability and the rich heritage of the country before the world. The World Congress is coming in November 22 to this country. Let us not only participate in large number, but contribute to making this event
a memorable event not only for our members but also for the members of other accounting bodies across the world. Let us have maximum participation from the other parts of the world. And in 100 years, when this event has come to our country for the first time, we will not get better opportunity than this to project and showcase the capabilities of chartered accountants in India. So with this, once again, I thank you all and my best wishes for the new year ahead. Thank you so much. Thanks a lot, Niyar bhai. Thank you. We'll move forward to the program of the day. हमारे साथ ब्रह्म कुमारी सेंटर के दीदी लाजवंती दीदी, राज योगिनी गोदावरी दीदी और आज के स्पीकर जो राज योगी भी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये हमारा सौभाग्य है, वो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ही क्लियर इज सीए वे बैक। हम लोग बहुत सारे जन के बर्थ के पहले, आई थिंक इन 1953 ही हैज क्लियर इज सीए। सो इट्स लाइक आवर फॉर्चुनेट टू हैव अ speaker who is from Brahma Kumari and he is also chartered accountant. Before I hand it over to Lajwanti Didi ji for her blessing, Ashirwad, just few words about the Lajwanti Didi ji. वो ब्रह्म कुमारी सेंटर भांडुप की इंचार्ज हैं। पिछले 40 वर्षों से उन्होंने अपना जीवन प्रभु ईश्वर की सेवाओं में समर्पित किया है। उनके अथक प्रयासों से भांडुप शहर के सैकड़ों निवासियों को आध्यात्मिक पोषण प्रदान करने वाला मधुवन गार्डन हरियाली के साथ साथ आध्यात्मिक सुगंध से खिल रहा है। वो एक राजयोगिनी है और राजयोग, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल लॉ, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक्सेट्रा विषयों पर अथॉरिटी है। वो एक बहुत अच्छी वक्ता है और उन्होंने बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, स्पिरिचुअल फेयर्स ऑर्गेनाइज किए हैं। उन्होंने समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में सकारात्मक मानवीय आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने के कंटिन्यूस प्रयास किए हैं और इनके लिए उन्होंने भारत और विदेशों में प्रवास भी किया है। few words for लाजवंती दीदी जी एंड मैं उनको रिक्वेस्ट अनुरोध करूंगा कि प्लीज उनका आशीर्वाद हमको दे। लाजवंती दीदी जी। दीदी आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। 1 मिनट। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। आया बस आया। परम पिता परमात्मा, सुप्रीम चार्टर्ड अकाउंटेंट, परमात्मा शिव की प्रिय संतान, हमारे सर्व बुलून स्टडी सर्कल के भाई बहने, मैं अभी सुन रही थी कि ये कार्यक्रम को करते करते 10 साल बीत गया या 11 साल लगा। बड़ी खुशी हो रही है कि अब हम बड़े हो गए। 11 साल में प्रवेश किया, पर कमाल तो परमात्मा की है जो हम बच्चों से ये कार्य करवा लेता है। और साथ साथ में मैं धन्यवाद ये स्टडी सर्कल के भाई बहनों को भी देंगी जो इस श्रृंखला को उन्होंने जारी रखा है। तो अगेन एक बार धन्यवाद करती हूँ। मुझे आज्ञा मिली है कि जो भी आज के प्रोग्राम के जो पार्टिसिपेट है उन सभी का स्वागत करने के लिए, तो मैं सबसे पहले इस मंच पर उस परम पिता परमात्मा शिव का स्वागत करूंगी जिनके प्रेरणा से ये कार्य होता आ रहा है। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम
किए जा रहे हैं, तो मैं शिव बाबा का इस मंच पर आवाहन भी करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। उसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी पिताश्री ब्रह्मा बाबा का, जिनके माध्यम से परमात्मा ये कार्य करवा रहा है। तो मैं पिताश्री ब्रह्मा बाबा का भी इस मंच पर आवाहन करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। ब्रह्मा बाबा, आपका स्वागत है, स्वागतम, शत स्वागत। इसके बाद मैं स्वागत करना चाहूंगी मुलुंड स्टडी सर्कल के प्रेसिडेंट आदरणीय भ्राता निहार भाई। निहार भाई, आपका भी इस ईश्वरीय मंच पर प्रभु की तरफ से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इस स्टडी सर्कल के पास प्रेसिडेंट आदरणीय भ्राता प्रफुल्ल भाई, आपका भी प्रभु की ओर से स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। और इस स्टडी सर्कल के चेयरमैन आदरणीय भ्राता मनीष भाई, आपका भी इस मंच पर तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। इसके बाद मुझे बहुत गर्व हो रहा है स्वागत करने में कि आज के मंच की शोभा, आज के मंच का उमंग और उल्लास हमारे आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी। आपने कई आत्माओं को परमात्मा से जोड़ने में ब्रिज का काम किया है। भगवान को भी आप पे नाज है, तो ईश्वरीय परिवार को भी नाज है। भ्राता जी, इस मंच पर आपका भी दिल व जान, सिक व प्रेम से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। अब मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी आदरणीय गोदावरी दीदी जी, जिनको भगवान ने गोदावरी नाम दिया, जो कि नासिक में है, पतित पावनी है। तो आप भी अपने ज्ञान और योग बल से अनेक आत्माओं को पतित से पावन बनाते जा रहे हैं। तो इस मंच पर मैं आपका भी तहे दिल से, हृदय से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। स्टडी सर्कल के कन्वीनर हमारे आदरणीय भ्राता हिमांशु भाई, स्नेहा बहन, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत। और हमारे विपिन भाई और मिनल भाई, जिनको इस प्रोग्राम करने में बहुत ही उमंग उल्लास रहता है, बड़ा सहयोग रहता है और बहुत खुशी होती है। मेरे ख्याल से तो सारे प्रोग्राम की खुशी ये दो आत्माओं को ही ज्यादा है। तो मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सर्व स्टडी सर्कल के जो भी भाई बहने हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और साथ साथ में आज जूम पर हमारे साथ जो भी भाई बहने जुड़े हैं, श्रोतागण, उन सभी का हृदय पूर्वक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद लाजवंती दीदी जी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा मीता बहन को, वो ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन का इंट्रोडक्शन सभी को कराएं और वो राजयोगिनी गोदावरी दीदी जी का भी इंट्रोडक्शन हमें कराएं। मीता बहन, ओम शांति। ओम शांति।
संस्था का परिचय मुझे कराने के लिए कहा है। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी संस्था से तो हम सभी बहुत पहले से जुड़े हैं और बहुत अधिक जानकारी भी है। मैं शॉर्ट में आपको उसका परिचय कराती हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्था है। यह संस्था की स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने 1936 में हैदराबाद, 1952 में यह संस्था माउंट आबू राजस्थान में स्थानांतरित हुई। इस संस्था की 140 देशों में से अधिक 9000 से भी अधिक ब्रांच। यह संस्था पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित होती है। यह संस्था के साथ एक राजयोगा एजुकेशन फाउंडेशन है। इसके अंतर्गत 20 अलग अलग वर्ग है, जैसे कि यूथ विंग है, जूरिस्ट विंग है, एजुकेशन विंग है, वुमेन विंग्स है, स्पोर्ट्स विंग्स है, ताकि यह संस्था अलग अलग क्षेत्र में भी अपने कार्य को कर सकती है और आध्यात्मिकता का मार्ग बता सकती है। यह संस्था हर आयु के, धर्म के, हर वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क कार्य करती है। इस आध्यात्मिक संस्था में यहाँ पर मानव को देव बन शिक्षा दी जाती है, जिसके कारण मानव के अंदर के चरित्र का उत्थान हो सके, मानव देव जाए। इस लक्ष्य को लेकर यह संस्था कार्य करती है। अब मैं आपको हमारी आदरणीय दीदी जी का आपको परिचय कराती हूँ। हमारी मीठी दीदी अपने नाम की तरह ही आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश के प्रकंपन फैलाती है। आसपास के लोगों को उनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहती है। दीदी जी ने 1958 में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। दीदी जी का सौभाग्य है कि उन्हें हमारे साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की और मातेश्वरी जगदम्बा माँ की पालना में पले हुए हैं, और वही पालना वो आज हमें भी देकर आप समान बना रहे हैं। उनके अंदर में हमारे जैसे 80 बहनें हैं जिनका वो संचालन करती है, और 30 ब्रांचेस है। जैसे भांडुप में एक ब्रांच है, वैसे उनके अंडर में 30 ब्रांचेस है। अलग अलग छोटे छोटे गांव में भी जाकर के दीदी जी ने बहुत अथक सेवाएं की है। उन्हें अलग क्षेत्र से भी बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2000 में भी ढाने भूषण पुरस्कार से दीदी जी को सम्मानित किया गया है। अपला मानुस करके उनको अवार्ड मिला हुआ है। उसके बाद पुरस्कार और बहुत सारे अवार्ड से दीदी जी सम्मानित हुई है, और उन्होंने उनके अंदर बहुत सारी आर्ट छिपी हुई है, जो अलग अलग ड्रामाएं, कविताएं, गीतों के द्वारा वो आध्यात्मिक सेवाएं करती रहती है, और व्यसन मुक्ति, ग्राम विकास, महिलाओं के लिए बहुत सारे दीदी जी ने अभियान किए हुए हैं। दीदी जी के अंतर्गत ही वो अभियान पूरे हुए हैं। और दीदी जी जो है वर्तमान समय मुलुंड में ही रहते हैं, और उनके द्वारा अभी हम आशीर्वचन सुनेंगे। आदरणीय दीदी जी। थैंक यू मेहता बहन। गोदावरी दीदी जी। आपको उनको अनम्यूट करना होगा हिमांशु। हाँ, अनम्यूट करना, एक ही मिनट। सबसे पहले दीपावली की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक। सभी अनुभवी है,
2 साल से लॉकडाउन चल रहा था। उस लॉकडाउन के अंतर्गत सारा ही अस्त व्यस्त मानव हो चुका है। सभी जगह चारों ओर दुख अशांति क्या, प्रकृति का तांडव क्या, क्या क्या बेरोजगारी क्या, चारों ओर दुख अशांति फैली हुई थी। अभी आज बड़ा आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है कि ये जो आज की इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा तो बस इतना ही आशीर्वाद के दूसरा कहेंगे या भगवान की तरफ से, श्री बाबा की तरफ से यही सभी को गिफ्ट कहेंगे। आप सभी के लिए यही गिफ्ट है कि आप सभी इस साल में बहुत बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए आप क्या करो, एक ही तरीका है, बस परमात्मा से अपना मन जोड़ो और कुछ नहीं है। जितना मन जोड़ते जाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, क्योंकि आज समाज को और कुछ नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए और खुशी चाहिए। और ये शक्ति और खुशी दोनों ही प्राप्त कराने वाला स्वयं भगवान ही है, परमात्मा ही है, हम सभी का पिता ही है। तो इसे जितना हमारा मन उसके तरफ जुटा रहेगा उतना हमें खुशी भी होगी और आत्मा को एक ऐसी पावर मिलेगी कि जिससे हमको जीवन जीने की नई कला आएगी। हमारे मन में उत्साह रहेगा, उमंग रहेगा, खुशी रहेगी। हम आप सभी के लिए यही चाहना करती हूँ, यही शुभ आशा करती हूँ कि दीपावली के शुभ अवसर पर हम सभी मिले हैं। दीपावली की शुभकामना देते देते साथ में यही कहूंगी कि आप सभी ये 2022 का साल सभी के प्रति आनंदमय हो, खुशीमय हो, भगवान के साथ मिलन बना करके शक्ति स्वरूप बनो। जो कोई भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आवे, लेकिन आप उस आपत्ति विपत्ति में अचल अटल अड़ल रहो, थोड़ा भी हिलो नहीं, सब कुछ ही अच्छा ही होने वाला है। गीता भी हमें कहती है कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। जो कुछ है वो अच्छा ही अच्छा है, उसमें घबराने की डरने की कोई बात ही नहीं है। अभी भी कई लोग घबरा रहे कि कोरोना की एक लहर गई, दूसरी गई, अभी तीसरी आने वाली है। आप उसका इंतजार नहीं करो, जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। तीसरी चौथी लहर का हमको कोई इंतजार नहीं करना है, हमें अपने आप का इंतजाम करना है। इंतजाम में बस इतना ही करने का है कि हमें अपने आप को, मन स्वयं को, आत्मा को मजबूत बनाने का है, मजबूर नहीं बनाने का है। कोई भी बात पे, छोटी मोटी बात में कभी भी अपने आप को कंफ्यूज नहीं करने का, कभी भी मन हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, अपने जीवन को भी निराश में नहीं बना देना है। हमेशा खुशी रखनी है, आनंद रखना है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा संकल्प भी पावरफुल करने का है। हमारा इतना ही कहने का है। आज तुम्हारे सामने हमारे दैवी भ्राता ब्रजमोहन भाई जी भी बता चुके हैं, उनके मुख से हम बहुत अच्छे अनुभव की बातें सुनेंगे, क्योंकि हमने तो बहुत ही शाखा में आकर के, संस्था में आकर के अनुभव पाया। आप लोगों को भी हमारी यही रिक्वेस्ट है सभी को, आप भी यहाँ आइए, पधारिए, अपने जीवन को एक बहुत ही अनुभव बनाइए, अनुभव बना करके औरों को भी आप प्रेरणा रूप बनिए। यही हमारी आपकी प्रति शुभभावना है, शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद दीदी। Now I request our mentor, advisor Bipin ji, who is instrumental in organizing this event, to share few words about the today's program and introduce to us Raj Yogi CA Brijmohan. Bipin ji. Thank you. Thank you, Himanshu. Namaskar, Om Shanti, and good morning to everyone present here. Honorable President ICI, past President, Chairman WIRC, other dignitaries from Brahma Kumaris, Convener Himanshu, Deputy Convener Sneha, other committee member, senior in profession and friends. Very good morning once again to all of you. I have been interested, pleasant and privileged task. मैं कहूँगा rather गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ मैं
कि आज मुझे भ्राता ब्रिजमोहन जी को इंट्रोड्यूस करना है. Before I come to that task, I would like to express my gratitude to Adaraniya Rajvanti Didi ji, who invites we busy CAs on the occasion of Diwali every year to Madhuban Garden since 2011. Considering that we are stressed up in complexities throughout the year, to refresh our mind, she invites various speakers, professionals from Brahma Kumari's family. Not only that, she takes care of all the arrangements there, and particularly I would like to name that Deep Prajwalan Prafulji has referred to. Deep Prajwalan as well as Satvik Bhojan presented there. We are missing, but Didi has ensured that at least online we can meet. So दीदी जी, आपका और सारे भांडुप के सेवादारियों का बहुत बहुत धन्यवाद है. फिर मैं गोदावरी दीदी जी का भी थैंक्स करना चाहूंगा. हर साल आके हमको आशीर्वचन देते हैं और हमें प्रेरणा देते हैं. तो दीदी जी, गोदावरी दीदी जो मुलुंड सब जोन के इंचार्ज है, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा. Special thanks to present and past conveners who had continuing this tradition for last 11 years. All council members who take time and grace this occasion whenever we invite them, and most importantly, member of the study circles who also ensure that to refresh the mind, we take this 2 hours in a year. Many times I think what is the requirement of such 2 hours program for throughout year. जब हम लोग इतना व्यस्त रहते हैं तो 2 घंटा सुनने से क्या होगा, लेकिन मुझे कई बार अनुभव जो मेंबर्स है, स्टडी सर्कल मेंबर समय समय पर अनुभव सुनाते हैं कि वो वक्ता की या वो स्पीकर की कही हुई बात या दीदी जी की कही हुई बात मुझे पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे काम में आई, कभी पर्सनल अनुभव में या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में. तो जब ऐसा अनुभव सुनते हैं मेंबर्स का तो बहुत खुशी होती है और ऐसा प्रोग्राम हर साल करने की प्रेरणा आती है. I am sure even future convener will ensure कि ये प्रोग्राम, ये ट्रेडिशन ऐसे ही चलती रहे. Now I will come to the main task entrusted to me, introducing आदरणीय ब्रिजमोहन भाई, CA ब्रिजमोहन भाई. CA ब्रिजमोहन भाई, ब्रह्म कुमार ब्रिजमोहन भाई is a multifaceted personality and very well-known motivational speaker, writer as well as broadcaster. He is a specialized, or I shall say he has a specialty in presenting the complex problems or deep spiritual truths with ease and humble and humorous way, so that it become understandable to all common person. He is qualified chartered accountant, one of the things which we can connect or relate to you, Vishnu Bhaiji. He graduated in the field of commerce in the year 1953, then from Delhi University, then in law in 1955, and qualified as a chartered accountant in 1956. He was associated with Brahma Kumaris and was following spirituality since from before that also. But as a professional journey and career, he was with Fertilizer Corporation of India, Government of India, PSU. After serving there for 17 years, he resigned as a post from the post of deputy finance head of that organization in the year 1973, so that he can fully devote himself to the cause of humanity as well as play the crucial role in the organization of Brahma Kumaris. He was entrusted various responsibilities at the institution Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalaya, which is also better known as a Brahma Kumaris institution, which has a headquarters in Mount Abu and active presence not only in all over India but over 142 countries spanning all 5 continents. Presently, Brijmohan Bhaiji is a chief spokesperson, additional general secretary of the Brahma Kumaris. He is also member of the Apex Body Managing Committee. He also heads finance accounts of the entire organization, which one more thing we can connect or relate to you, Bhaiji. He is tireless promoter of the human values, and during his almost 8 decades of the spiritual journey, he has organized numerous seminars on social and spiritual theme. He is nominated for this his work on values. He is nominated on core committee of the education in human values under the Ministry of Education, Government of India. For delivering lectures and conducting Raj Yoga retreats, he is invited across the globe and has traveled extensively to all 5 continents. He has made nation proud by representing and being part of several international conferences. To name the few, World Hindu Conference held in Mauritius,
International Religious Conference held in South Africa, World Forum of Spiritual Culture in Kazakhstan. In the year 2000, he also participated in United Nations Millennium and was an active part of presentation of Brahma Kumaris one of the project, very renowned project there, presented by Brahma Kumaris, Million Minutes of Peace Appeal project at the United Nations headquarters in New York. Brijmohan Bhaiji has authored several books on the topic of spirituality and values. Also, he is director of Jollywood Studio at Om Shanti Retreat Center, ORC, Gurgaon, and has produced several short feature film on the socio-spiritual theme. Brijmohan Bhaiji, आज आपने मुलुंड सीए स्टडी सर्कल का आमंत्रण स्वीकार किया। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और अपने आप को सभी मेंबर्स हम भाग्यशाली तथा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप हमारे बीच हो। आज हमारे सारे सीए भाई बहन आपकी सरल, सहज और सुंदर भाषा में आज का जो विषय है एनहांसिंग इनर पावर्स, इस पर आपके प्रेरणामय विचार सुनने के लिए उत्सुक एवं आगंतुक है और आपका तहे दिल से सभी मेंबर की ओर से मैं स्वागत करता हूं। वेलकम वंस अगेन भाई जी, एंड नाउ आई हैंड ओवर बैक टू फॉर द मेन स्पीच। ब्रिजमोहन भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत धन्यवाद। गोदावरी बहन जी का, नाज बहन जी का बहुत धन्यवाद। और बड़ी खुशी हुई कि वर्षों से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और इस बार आपने मुझे भी इसमें शामिल कर दिया। और जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस बेरर्स हैं, उन सब की बातें मैंने सुनी, बहुत खुशी हुई। और जितने भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कुछ अपने विचार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों के साथ शेयर करने का। जब मैं दिल्ली में था तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में ही हमारी कोचिंग हुई और मुझे ब्रह्मा कुमार बनने के बाद बड़ी इच्छा रहती थी कि मैं इंस्टीट्यूट में जाकर या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सभाओं में कुछ विचार रखूं जो मैंने यहाँ सीखा है। तो मुझे मौका मिला। नागपुर के एक भाई उस वक्त प्रेसिडेंट होते थे इंस्टीट्यूट के, उन्होंने मुझे बुलाया। फिर आजकल वो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी हो गई है, पहले तो छोटी थी। उन्होंने बहुत बड़ा कैंपस बनाया है ट्रेनिंग का। वहाँ पर मुझे भाइयों के साथ शेयर करने का मौका मिला। फिर हैदराबाद में ब्रह्मा कुमारीज का बहुत बड़ा कैंपस है, तो वहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मीटिंग करनी थी, तो हमारा हॉल ही उन्होंने सिलेक्ट किया प्रोग्राम के लिए। वहाँ भी मुझे सीएस से मिलने का मौका मिला। तो कई बार ऐसे मौके मुझे मिलते रहते हैं। अन्य लोगों की सेवा करने की तो खुशी होती है, लेकिन अपने प्रोफेशन के भाई बहनों से करने की और भी खुशी होती है। अभी मैं रिसेंटली दुबई गया था, तो दुबई में बहुत सारे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ रूल्स बनाए हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रखना आवश्यक हो गया है। उनका एक बहुत बड़ा क्लब है। वहाँ भी मुझे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ अपने विचार शेयर करने का मौका मिला था। कि हम स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं, तो हर एक व्यक्ति को स्पिरिचुअल ज्ञान की आवश्यकता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी है। तो क्योंकि ये सभी भाई बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मैं पहले बैलेंस शीट ऑफ लाइफ इसके बारे में थोड़ा शुरू करूंगा आपके इंटरेस्ट के लिए, कि आप अपने जीवन की बैलेंस शीट बनाएं और कुछ चीजें क्रेडिट साइड में रखें, कुछ डेबिट साइड में रखें, और फिर देखें
कि हैप्पीनेस जो सबका एक कॉमन गोल होता है, जीवन में हम कुछ भी करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, हमारा लक्ष्य तो हैप्पीनेस का ही होता है। नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया जाता है, तो हम अपना हैप्पीनेस इंडेक्स बनाएं। तो डेबिट और क्रेडिट को देखकर देखें कि नेट हमारा जो प्रॉफिट है हैप्पीनेस का, वो हमारा कितना कितना है और हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो क्रेडिट साइड पर हम एक एक शब्द मैं बोलता हूं, आप उस पर ध्यान देके अपने लिए नोट करेंगे। पहली बात होती है सत्यता। अब सत्यता कहा जाता है सत्यमेव जयते, सत्य की नाव डोलती है पर डूबती नहीं है, अल्टीमेटली सत्य की विजय होती है। तो पहला आइटम है सत्यता। क्रेडिट साइड पर हम अपने जीवन में सत्यता को कितना अपनाए हुए हैं, क्योंकि भगवान भी को कहा जाता है ट्रूथ। तो परमात्मा के बच्चे होने के कारण से हमें अपने जीवन में सत्यता रखनी है। और दूसरी आइटम है धैर्यता, पेशेंस। ये एक बहुत बड़ा गुण है। और आज आप तो बम्बई में रह रहे हैं, आपने पहले वर्णन भी किया बॉम्बे की लाइफ कैसी है। ऐसी स्थिति में होते हुए भी हम अपनी पेशेंस को कहाँ तक रखते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है, भगवान के आगे जाके भी बैठते हैं, कहते हैं गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज हरी अप। आजकल हमारा ये हाल है कि पेशेंस भी हम जल्दी से मांगते हैं। तो हमारे जीवन में पेशेंस कितनी है। तीसरी बात होती है गंभीरता, डेप्थ। मैंने बहुत सारे मीटिंग, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करता रहा हूं। तो बहुत गंभीर विषय लेकर वो शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसमें ऑर्डिनरीलीनेस पाई जाती है। तो वो हम जीवन को गंभीरता से कितना लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो गहराई में जाता है वो घबराता नहीं है। इफ यू गो डीप यू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। तो समुंदर के अंदर भी, सागर में ऊपर बड़ी बड़ी लहरें हो सकती हैं, लेकिन गहराई में शांत होता है। और रतन भी गहराई में ही मिलते हैं। तो हम जीवन को कितनी सीरियसनेस से लेते हैं, क्योंकि ये भगवान का दिया हुआ जीवन है, कोई खेल पाल और खाने पीने कर बिताने की बात नहीं है। और एक और बात क्रेडिट साइड में हम रख सकते हैं, मधुरता, कि हमारे जीवन में स्वीटनेस कितनी है और वो स्वीटनेस हमारी दूसरों को कितनी शांति पहुंचाती है, कितना शीतलता पहुंचाती है, कितना सुख पहुंचाती है। हम एजिटेट तो नहीं हो जाते। कभी कभी एक व्यक्ति ज्यादा प्रवीण होता है, ज्यादा संपन्न होता है, ज्यादा क्वालिफाइड होता है, तो उसको उसका थोड़ा सा नशा भी होता है। लेकिन उसी शक्ति को हम पॉजिटिवली जीवन में यूज करके, क्योंकि आखिर मिठास जो है, वैसे हम दिवाली पर मिठाई खिलाते हैं, उसका भावार्थ भी यही होता है। वो हम ऊपर से टोकन खिलाते हैं कि मीठी जुबान हो, मीठे बोल हो, जो एक दुखी व्यक्ति को भी, एक डिस्टर्ब व्यक्ति को भी ठंड पहुंचा दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा गुण है जो हर व्यक्ति अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपना सकता है। और फिर एक और बात है नम्रता, ह्यूमिलिटी। तो ये चीजें जो हैं हमारी क्रेडिट साइड पर आती हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सत्यता है, धैर्यता है, गंभीरता है, मधुरता है और नम्रता है। तो ये क्रेडिट साइड में आ जाती हैं, हमारी कमाई समझ लीजिए।
अब इसमें घाटा क्या होता है, खर्चा क्या आता है, तो हम डेबिट साइड की तरफ देखते हैं। तो कहा जाता है पाप मूल अभिमान। हमारे अंदर कहीं अहंकार तो नहीं आ जाता? अहंकार इतना सूक्ष्म चीज है कि कई बार मैं कह देता हूं मुझे कोई अहंकार नहीं है, इसका भी मुझे अहंकार हो जाता है कि मुझे कोई अभिमान नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सारी कमजोरियों में सबसे लास्ट जो छूटती है वो अहंकार होता है। अच्छा, दूसरी बात, आजकल जिसको हम अपना टूल समझते हैं जीवन का, लेकिन हम सब जानते हैं उसका नाम है क्रोध। हमने सब कुछ किया, बड़े अकम्पलिश्ड हो गए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट का तो ऐसा वर्ग है जिनको रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न नहीं है, जिनके पास साधन है, संपन्नता है, समय है कि वो हायर ऑब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ को परसू कर सके। लेकिन एक व्यक्ति कितना भी सिविलाइज्ड हो, लेकिन जब उसके अंदर क्रोध आ जाता है तो फिर वो क्या कहा जाए, भगवत गीता में भी कहा हुआ है कि क्रोध जो है वो बुद्धि का नाश कर देता है, और जिससे सर्वनाश हो जाता है, व्यक्ति की जो इंसानियत है वो समाप्त हो जाती है। तो आजकल हम अपने नाम के साथ, पहले हमारे वक्त में सीए बाद में लिखा जाता था, अब हमारी इंस्टीट्यूट ने हमें सम्मान देने के लिए पहले सीए लिखना सिखा दिया। अच्छी बात है, लेकिन आप जानते हैं कोई लॉयंस क्लब का मेंबर है, कोई रोटरी क्लब का मेंबर है, वो भी लिखते हैं। लेकिन हम प्रोफेशनल से पहले ह्यूमन बीइंग हैं, और ह्यूमन बीइंग हम कितने अच्छे हैं वो हमारे प्रोफेशन को और ही ग्लोरीफाई करता है कि देखिए ये व्यक्ति इतना संपन्न है लेकिन इतना नम्र स्वभाव है। तो क्रोध जो है वो हमारी इस चीज को छीन लेता है। हम सब जानते हैं क्रोध नेचुरल चीज नहीं है। जैसे बॉइल्ड वाटर होता है, उसमें आप उंगली जब लगाएंगे तो सूज जाएगी, लेकिन वाटर की नेचुरल नेचर बॉइल्ड वाटर नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। तो हमारा भी टेम्परामेंट जो है वो नेचुरल क्रोध का नहीं है। अगर हम इस पर अटेंशन रखेंगे तो हमारी प्लस साइड बढ़ेगी और उसमें मार्क्स घटेंगे नहीं। फिर इसके बाद आता है लोभ। अब हम अपने घर के बाहर स्वास्तिका बनाते हैं, उसमें लिखते हैं शुभम लाभम, तो गलती से कहीं शुभम लोभम तो नहीं लिख देते, क्योंकि वैसे लोभ बड़ी अट्रैक्टिव चीज है। अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए तो अच्छा ही है ना, क्या हर्ज है। लेकिन कुदरत का लॉ कुछ और तरह का। मान लीजिए हमको कोई कहे, हम सबको, कि मान लीजिए आपका बॉडी वेट डबल कर दिया जाए तो आप स्वीकार करेंगे? आप कहेंगे नहीं, आजकल तो बहुत लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, वो चाहते हैं कि मेरा वेट कम से कम हो ताकि मैं चुस्त रहूं, बीमारी से मुक्त रहूं आदि। हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे कि हमारे बॉडी का वजन डबल कर दिया जाए। लेकिन अगर कोई कहे आपका धन डबल कर दिया जाए, आप खुशी से स्वीकार कर लेंगे। बात तो दोनों एक ही है, वो भी बोझ है, वो भी बोझ है, वो मेंटल बोझ है, बल्कि वो ज्यादा है। आखिरकार जीवन के अंदर धन बड़ा आवश्यक है, लेकिन केवल धन ही सब कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जितना ज्यादा धन होता है उसको संभाल के रखने की, बचाने की, टैक्स वालों से बचाने की, अपने धीरे धीरे अपने बच्चों से बचाने की भी नौबत आ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है साईं इतना दीजिए जामै कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध ना भूखा जाए। ये तो एक आइडियल है, फिर भी हमारे अंदर लोभ की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
लोभ कंटेंटमेंट का दुश्मन है। तो हमें चूज करना है कि हम अपने जीवन में कंटेंटमेंट चाहते हैं या लोभ चाहते हैं। लोभ किसी को भी हो सकता है। कहा जाता है ए कंटेंटेड बेगर इज लाइक ए किंग एंड ए ग्रीडी किंग इज लाइक ए बेगर। ग्रीड का कोई अंत नहीं होता और व्यक्ति अपनी वैल्यूज को खोकर ग्रीड तो धन कमाना और बात है, लेकिन उसका ग्रीड रखना ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव चीज है। इससे हमें बचना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे लोग बिजनेस में धन को इन्वेस्ट कर देते हैं, हम भी अपने धन को, ब्रह्मा कुमारी में हमें यही सिखाया जाता है, किसी गुड कॉज में इन्वेस्ट कर देंगे। बिजनेस में तो आपको धन का धन ही बढ़ेगा, उसमें आपका बहुत कुछ समृद्धि बढ़ सकती है। ब्रह्मा कुमारी आपको पता होगा किसी से भी डोनेशन नहीं लेते हैं, लेकिन ये जानते हैं क्योंकि जिस डोनेशन में किसी का भाव नहीं है, भावना नहीं है, किसी का सुपर प्लस है वो दे देता है, वो नहीं लेते हैं। अपने लोगों का, हम लोग जो जीवन जीते हैं, हमारा जो एक्स्ट्रा धन होता है वो हम इसमें लगा देते हैं और हमें पता है इसका कई गुना फल हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वेल बीइंग के लिए हमें जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है। नेक्स्ट बात जो आती है डेबिट साइड पे, वो है मोह। अब मोह भी बहुत मीठी चीज है, क्योंकि कई चीजें हमारी, जैसे क्रोध है वो जैसे कि एसी करंट होता है, और लोभ मोह जैसे डीसी अट्रैक्ट करने वाली चीज है, जैसे मीठा जहर जिसको कहा जा सकता है। इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। गीता के लास्ट वर्ड्स हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। ये एक ऐसी चीज है, मान लीजिए राम जी को वनवास हो गया, दशरथ क्यों मारे गए? दशरथ ने सुइसाइड क्यों कर लिया? मोह के कारण से। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हम आए हैं, हमारे साथ बहुत से लोग आए, बीच में जर्नी ऑफ लाइफ में कोई उतर जाते हैं, कोई चढ़ जाते हैं, तो मोह हमें दुख देता है वास्तव में। इसलिए इसको भी हम डेबिट साइड पे रखते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कहते हैं काम विकार। गीता में कहा गया है काम विकार महाशत्रु है। काम विकार के अंदर आता है बुरी नजर। हम ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखते हैं, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सचमुच अगर हम आज के लोगों की बुरी नजर की टैली करें तो शायद सारे दुनिया का काला पेंट भी कम हो जाएगा। और इस बुरी नजर के कारण हमारा भारत देश, जो देवी देवताओं का देश कहलाता है, जिसमें हम शक्तियों की, नारियों की 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, वहां आप जानते हैं आज हमारे देश की क्या दशा है। और जिसको कहते हैं कैरेक्टर, बहन जी ने कहा ब्रह्मा कुमारी कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाते हैं। कैरेक्टर का एक प्राइमरी जो सेलिएंट फीचर है वो शुभ दृष्टि है। तो देवताओं की शुभ दृष्टि थी। आज का समाज ऐसा है जिसमें हमको इससे बचाव करना है कि क्या हम सिविल आइज्ड हैं, अर्थात सिविल आंखों वाले हैं, या क्रिमिनल आइज्ड हैं। हमारी आंखों में नारी जाति के लिए काम वासना है। तो ये चीजें डेबिट साइड पे है। अब आप इसका टोटल लगा के इनका बैलेंस करके देख लीजिए, जो नेट प्रॉफिट ऐड होता है उसका नाम है हैप्पीनेस। दूसरी बात, हम लोग ये समझते आए हैं क्योंकि हैप्पीनेस इज द कॉमन गोल ऑफ लाइफ। अगर जीवन में खुशी ही नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो कुछ भी नहीं है। और अगर खुशी है और कुछ भी नहीं है तो सब कुछ है, ये तो हम जानते हैं। हम ये समझते हैं कि हैप्पीनेस के 2 इंग्रेडिएंट हैं, एक हेल्थ और एक वेल्थ। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारे पास पर्याप्त धन हो, तो हम खुश रहेंगे।
अच्छा, आज आप देखिए कि जिन लोगों के पास पर्याप्त से भी ज्यादा धन है और जो शारीरिक तौर पे भी अच्छी तरह से रुष्ट पुष्ट हैं, उनकी हैप्पीनेस का क्या हाल है। एक्चुअली ये उल्टा है। हैप्पीनेस लीड्स टू हेल्थ एंड वेल्थ, नॉट द अदर वे अराउंड। ये खास बात नोट करने की है। आप देखिए, हम चाहते हैं खुशी। अब कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, और खुराक से हेल्थ बनती है। अगर हम खुश रहते हैं तो हमारी हेल्थ नेचुरली, हमारे हार्मोन्स ठीक रहेंगे। खुशी वाले व्यक्ति का मन भी बहुत खुश रहेगा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए जा रहा है और वो खुश है, उसको कोई गलती से टकरा जाए और कहे सॉरी मैंने आपसे टकराया, तो खुशी वाला क्या कहता है? अरे अरे कुछ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। और वही व्यक्ति नाखुश है, गमगीन है, किसी चिंता में है, उससे वही व्यक्ति उसी तरह टकरा जाए और वो कहे सॉरी, तो फिर वो नहीं कहता कुछ नहीं, वो कहता है दिन चढ़ा हुआ है, इतना बड़ा इंसान हूं, तुझे दिखता नहीं? तो हमारा कैसे चेंज हो गया? क्योंकि हम नाखुश हैं। तो इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं कहा गया, अर्थात खुशी हमें हेल्दी रखेगी। खुश व्यक्ति को कुछ ज्यादा भोजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सेटिस्फाइड रहता है। दूसरा कहा जाता है मनी, वेल्थ। तो ये भी कहा गया है खुशी जैसा खजाना नहीं। अगर किसी व्यक्ति पास अल्टीमेटली मनी भी, तो हम खुशी के लिए ही तो कमाते हैं। तो एक्चुअली इट इज अदर वे अराउंड। अगर हम खुश रहते हैं तो हमें हेल्दी वेल्दी हम रहेंगे नहीं। हमारी एक दादी हृदय मोहिनी जी थी, बड़ी दादी जी थी, उनका एक स्लोगन था कि कुछ भी चला जाए तुम्हारी खुशी ना जाए। और खुशी हमारे हाथ की चीज है। आप देखिए, जैसे आप टीवी में जो चैनल आपको पसंद होता है वही लगाते हैं। किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, कई लोगों को स्टॉक मार्केट का अच्छा लगता है। लेकिन कई ऐसे चैनल होते हैं, कार्टून चैनल होते हैं या कोई हंसाने वाले होते हैं, वो भी होते हैं। तो जैसे व्यक्ति वो चैनल लगा के टेम्परेरीली दूसरा हमको कुछ बातें बताता है, हम खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से क्यों नहीं हम अपने जीवन के अंदर, अपने मन के अंदर ऐसा चैनल ऑन रखें कि जो नाखुश करने वाली बातें हैं वो हम स्विच ऑन ही ना करें, अगर आए तो उसको ऑफ कर दें। पॉसिबल है ना? क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आप कुर्सी पर आराम से बैठे हैं, कुछ सोच रहे हैं जो खुशी की बात है। कोई फ्रेंड आता है, वो कहता है बड़े खुश नजर आ रहे हो भाई, क्या सोच रहे हो? उसको पता लग जाता है। और अगर आप चिंता में हैं तो भी वो कहता है कि भाई बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? तो इसलिए हम अपने खुशी को, जब हमारा एम ऑब्जेक्ट ही खुशी है, तो हम खुशी को क्यों जाने देते हैं? तो आइदर बाय एक्सटर्नल मीन्स और बाय इंटरनल मीन्स हमें हर तरीके से ये ध्यान रखना है कि जैसे हम अपने मनी का ध्यान रखते हैं, हमारा पर्स गिर जाए, ओहो पैसा चला गया। अगर हमारी कोई मिलने वाला आया और आपके गेस्ट कोई आता है, आपकी खुशी को ले गया, जैसे कोई घर में गेस्ट आए कोई चीज उठा के ले जाए, तो आपके जीवन में परिस्थितियां कुछ भी आए, लेकिन वो आएंगी और जाएंगी, परिस्थिति सदा नहीं रहती। लेकिन खुशी हमारी अपनी चीज है, तो हमारी खुशी को क्यों ले जाएं? तो इसलिए हम अपनी खुशी की स्टेज में रह करके जीवन में व्यवहार करें। तो हम ध्यान रखें कि ये हमारी पूंजी है जिसको हमने बहुत मुश्किल से धारण किया, और खुशी को बढ़ाना जीवन का लक्ष्य है, इसका हम ध्यान रखें। अब हम आते हैं बात पर
क्या हमको जीवन में परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए या शॉर्ट लिव्ड ट्रांसिएंट इन बिटवीन हैप्पीनेस चाहिए? आज लोग ये समझने लगे हैं और वास्तविकता है कि जीवन इतना संघर्षमय हो गया है। कई लोग कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल और लाइफ में तो शांति हो ही नहीं सकती, हमारा काम ही इस तरह का है, तो हमारे को खुशी नहीं रहती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कोई क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, कोई गेम्स ज्वाइन कर लेते हैं, घर में लेजर एंटरटेनमेंट के लिए साधन रखते हैं, खुशी के लिए। कभी व्यक्ति आप देखेंगे डिस्टर्ब है तो खाना ज्यादा खा लेता है, शायद इसमें ही मेरा संतुष्टि हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन हर व्यक्ति अंदर से क्या चाहता है कि मेरी खुशी परमानेंट हो, ऐसी हो जो जाए ना। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? आप देखिए कि क्या कोई समुंदर को आग लगा सकता है? कितनी भी भारी आग आप ले जाएंगे, आग ही बुझेगी, समुंदर तो समुंदर रहेगा। अगर हम खुशी में इतना हमारा पास खुशी का स्टॉक हो कि कोई भी चीज उसको डिस्टर्ब करने आए, थोड़ी बहुत छीनने की भी कोशिश करे, तो हम खुश तो रह सकते हैं। लेकिन ये भी इस जन्म की बात है कि कोई बहुत मेहनत करे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर क्या होता है, आप अगर हेल्दी हैं तो वेल्दी नहीं। आप जानते हैं कि यूथ के यंग एज में हमारे पास धन कम होता है, फिर जब हम वेल्दी हो जाते हैं, ओल्ड एज में कुछ धन इकट्ठा हो जाता है, तो शरीर ठीक नहीं रहता। कहा जाता है ना कि जब बादाम नहीं थे तो दांत थे, अब बादाम आ गए तो दांत नहीं है, ये चलता है। या हम थोड़े पीरियड के लिए खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे हमें पता है कि खुशी नहीं है। तो परमानेंट खुशी के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि उसका कंटेनर भी परमानेंट होना चाहिए। आप बहुत भारी चीज को पत्ते के दोने में तो नहीं रख सकते, तो इसलिए वो कंटेनर कौन सा है जिसमें हम खुशी को रखें और वो परमानेंट हो जाए और उसको कोई छीन भी ना सके, और ना सिर्फ इस जन्म में चले, आत्मा के साथ आगे भी चले। तो वो परमानेंट कंटेनर हमारा आत्मा ही है, क्योंकि बॉडी है। आजकल के जमाने में बॉडी का भी कोई भरोसा नहीं रहा। पहले वक्त में चलो 100 ईयर्स ही गिन लेते थे, तो आजकल तो इसको कहा जाता अकाल मृत्यु का कलयुग है। इसको लोग मृत्यु लोक भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, हमारे पूर्वजों देवताओं को अमर लोक कहते थे। उस वक्त परमानेंसी था एज का, लाइफ का। आजकल तो है नहीं। तो क्या होता है, जब किसी को पता है कि पता नहीं मैं जीऊं या ना जीऊं, तो वो बुढ़ापे का काम जवानी में करने की कोशिश करता है, जवानी का बचपन में करने की कोशिश करता है कि पता नहीं मैं रहूं ना रहूं। इससे डिस्टरबेंस होता है। लेकिन अगर आप ये समझें कि खुशी आत्मा में लाए, और मजेदार बात यह है कि वास्तव में खुशी होती ही आत्मा में है। सैडनेस, ग्रीफ भी आत्मा में होता है, सफरिंग भी आत्मा में होता है, और खुशी भी एक्चुअली आत्मा में ही होती है। क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि all the things that we desire are non-physical, non-material। अर्थात जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी जो हमें चाहिए, वो फिजिकल नहीं है, मटेरियल नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ क्रेडिट साइड की चीजों का वर्णन किया था, तो सत्यता आत्मा में रहती है या शरीर में रहती है? धैर्य आत्मा में रहता है या शरीर में रहता है? मधुरता आत्मा में रहती है या शरीर में रहती है? इसी प्रकार से गंभीरता, नम्रता आदि। तो एक्चुअली ऑल वैल्यूज आर स्पिरिचुअल, क्योंकि आत्मा की ही ये क्वालिटीज हैं।
और जो मैंने डेबिट साइड में कहा नेगेटिव, वो भी स्पिरिचुअली है। क्रोध किसको आता है? क्रोध शरीर को तो नहीं आता, आत्मा में ही आता है। अच्छा, हम आत्मा को जरा, भैया ठक ठक बंद कराओ। हम देखेंगे, आत्मा आपको मुश्किल लगता है समझना। वैसे तो हम कहते हैं वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू कंपोनेंट्स, एक ह्यूमन पार्ट और एक बीइंग पार्ट। ह्यूमन पार्ट इज फिजिकल एंड बीइंग पार्ट इज आत्मा। और एक्चुअली बीइंग ह्यूमन को धारण करता है, आत्मा ने शरीर को धारण किया है। इस वक्त मेरी एज 89 ईयर्स है। आप भी अपनी एज को देख लें और 1 ईयर उसमें ऐड कर लें और फिर अपने से क्वेश्चन करें, इतने वर्ष पहले मेरे पास ये बॉडी था? तो आंसर आएगा नहीं था। और जितने मर्जी ईयर्स आप चाहें अपने आज के ऐड कर लें, फिर पूछें इतने वर्ष बाद ये बॉडी रहेगा? तो आंसर आएगा नहीं। तो ये तो हमारा मीडियम है, आत्मा ने बॉडी को लिया है, आत्मा बॉडी छोड़ती है। तो वास्तव में ये तो हमारा मीडियम है, काम करने वाला तो आत्मा है। और आत्मा की एक फैकल्टी है जिसका नाम है मन। आत्मा में 3 फैकल्टीज होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति, और उसका जो इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे अंदर संस्कार रूप में आत्मा के अंदर रहता है। हर व्यक्ति अपने संस्कार के अनुसार ही काम करता है। और बेसिक बात, अगर अपनी लाइफ को हम बेटर करना चाहते हैं तो हमें अपने संस्कारों को इम्प्रूव करना है। इसी को हम जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि जिस स्थिति में मुझ आत्मा ने इस दुनिया में आया, बाकी हमारे सारे साधन हैं, उनको यूज करके क्या मैंने अपने संस्कार को बेटर किया, या और ही कहीं अपनी ऑनेस्टी को बेच दिया, कहीं कुछ सत्यता को बेच दिया। उस वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली मैं अपने आप को डीवैल्यू कर रहा हूँ। इसलिए अब हम सब बातों को छोड़कर मन के ऊपर आते हैं, क्योंकि मन के लिए बहुत कुछ कहा गया है और हम सब सुबह से शाम तक मन से ही डील करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीत तो जगत जीत, ये कहा गया। और सब लोग मन को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है, क्या मन को मारा जा सकता है? कई लोग सोचते हैं कि हम मन को दमन कर दें, अर्थात मन में कोई संकल्प उठे ही ना अच्छा उठे ना बुरा उठे, इसलिए न्यूट्रल थॉट रहेगा तो मन ना इधर झुकेगा ना उधर झुकेगा। वास्तविकता यह है कि अगर आप मन को थॉटलेस बनाने के लिए 1 मिनट भी बैठ जाएं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ना सोचूं 1 मिनट के लिए, फिर भी तो आप सोच रहे हैं ना। यू आर हैविंग ए थॉट दैट आई शुड हैव नो थॉट। वो तो आर्टिफिशियल हो गया, क्योंकि मन का काम ही संकल्प करना है, वो लगातार संकल्प करता ही रहता है। अब देखना यह है कि मन के संकल्प, जैसे कोई चीज यूजफुल होती है, कोई चीज वेस्ट जाती है, तो हमारे मन के संकल्प अगर एप्रोप्रिएट नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो फिर हमारी विल पावर जिसको कहते हैं वो घट जाती है और विश पावर बढ़ जाती है। आज आप चेक करेंगे मेरे मन में कितनी शक्ति है, क्योंकि मन ने ही हैप्पीनेस को लाना है और आत्मा में धारण करना है। आप देखेंगे हमारे में विश पावर बहुत है, और हम दूसरों को भी जो पास ऑन करते हैं वो विश पावर करते हैं।
I wish you Happy New Year. अगला साल पूरा जीता है या नहीं जीता, I don't know. I wish you happy married life. 3 महीने बाद डाइवोर्स हो जाता है. I wish you happy journey. वो पता नहीं पहुंचता है या नहीं पहुंचता है. इसलिए कहा जाता है if wishes were horses beggars would ride. तो wish is no will. इसका मतलब क्या हुआ, अपने लिए भी हम विश ही करते हैं. तो विश पावर इज नो पावर, एक्चुअली विल पावर इज पावर. अब हमारे मन में ओरिजिनली विल पावर थी या विश पावर थी? तो आप देखेंगे हर व्यक्ति के अंदर असली व्यक्तित्व उसका वह है जितनी उसकी विल पावर है. गांधी जी वाज ए फ्रेल पर्सन, लेकिन गांधी जी में विल पावर था. उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य से ना झुककर भारत को स्वतंत्रता दिला दी. इसी प्रकार से व्यक्ति की फिजिकल बॉडी के स्ट्रेंथ का, उसकी वेल्थ का, आदि आदि का, उसके रिसोर्सेज का विल पावर से कोई कनेक्शन नहीं है. ओरिजिनली हम सब के अंदर फुल विल पावर थी. तो उसका मतलब क्या था? सिद्धि. जो हम चाहते थे वो हो जाता था. हमारे पूर्वजों में सिद्धि थी. धीरे धीरे हमने वो सिद्धि खो दी. अभी भी हमारे अंदर उसका अंश बाकी है. कई बार आप कहते हैं ना, अरे मैंने तुम्हें याद किया था, तुम आ गए. मैं सोच रहा था, तुमने मुझे फोन कर दिया. हम बड़े खुश होते हैं कि देखो ये सिद्धि की निशानी है. लेकिन दिस इज फ्यू एंड फार बिटवीन. कभी कभी सिद्धि होती है. हम सब एक्चुअली हर समय सिद्धि स्वरूप बन सकते हैं. सिद्धि का मतलब क्या है? कर्म का फल. अगर आप कर्म करें और उसका फल ही ना निकले, निष्फल हो जाए, सफल ना हो, तो कर्म का फायदा क्या होगा? इसलिए हैप्पीनेस के लिए भी हमें सबसे पहले अपने मन को सेट राइट करना पड़ेगा. क्योंकि कहा गया है जिसने अपने मन को जीत लिया उसने हर सिचुएशन को जीत लिया. अर्थात डिप्लीशन के हर कॉज को उसने पलट कर दिया. इसलिए अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हमारे मन की विल पावर डिप्लीट होती है. तो आप देखेंगे, हम सबका अनुभव है, सबसे पहली चीज है वेस्ट थॉट्स. अब हम जिंदगी में काम करते हैं, सुबह से शाम तक जीते हैं. उसमें कितने थॉट्स हमारे नेसेसरी होते हैं, कितने हमारे क्रिएटिव होते हैं, कितने हमारे पॉजिटिव होते हैं और कितने हमारे वेस्ट होते हैं. तो आप पाएंगे कि आज वेस्ट थॉट्स की मात्रा, मैं परसेंटेज नहीं कहता, कम से कम 80, लगभग 80% है. अगर हम आपका धन 80% वेस्ट हो रहा हो तो आप ध्यान रखेंगे ना ये क्या हो रहा है. अब वेस्ट थॉट्स में एक और चीज ऐड हो गई है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन. कि अननेसेसरी चीजें जिनका हमारे से कोई मतलब नहीं है, आज उसका बम्बार्डमेंट हो रहा है थ्रू मीडिया, थ्रू अदर थिंग्स, थ्रू मोबाइल. एंड तो जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए वो भी हमारे ऊपर और बहुत फास्ट स्पीड से इंजेक्ट की जा रही है. उससे वेस्ट थॉट्स और बढ़ते हैं. जिन चीजों के हमें कोई डिजायर नहीं है उनके लिए हमारे अंदर डिजायर क्रिएट की जा रही है. छोटे बच्चों के अंदर भी वो ब्रांड कह के चीज मांगते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि सारा माहौल वेस्टफुल है. अगर आप अपनी जिंदगी का, आज की जिंदगी को एनालाइज करें तो कितना टाइम हमारे जीवन का वेस्ट जाता है. ट्रांसपोर्ट में, वेटिंग में,
हॉस्पिटलाइजेशन में, झंझटों को निपटाने में, प्रोफेशन में, कमाने में। तो टोटल हमारी, जिसको कहा जाता है मनुष्य का जन्म, बड़ा अनमोल है और बहुत मुश्किल से मिलता है। और हम ये कहते हैं कि गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ये सर्व जोनियों से अमूल्य जीवन है और उसमें इतना वेस्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या। अब आप हमारे पूर्वजों को देखिए, देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, उनकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में हैं। आज वो जीवित नहीं है लेकिन उनकी मूर्तियां हैं और वो भी फैमिली लाइफ में है। देवी देवताओं को इकट्ठा दिखाया जाता है, राज सिंहासन पर भी इकट्ठा दिखाया जाता है, चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण को ही ले लीजिए। उनके वस्त्र बड़े बढ़िया होते हैं, उनकी ज्वेलरी, आजकल के सेठ मूर्तियों के कई सेट बनवा के देते हैं। उनके आगे भोग कितने अच्छे 36 प्रकार का रखा जाता है। यानी जो लाइफ हम चाहते हैं वो उनके अंदर है, लेकिन उन सब चीजों को उपभोग करने की उनमें मनोबल भी है। अगर आपका बेसिक उपभोग करने का माध्यम ही खत्म हो जाए और आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज रह जाएं तो बहुत मिजरेबल हो जाता है। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, उसका ड्राइवर उस कार से जा रहा है और रास्ते में लिखा हुआ है रसगुल्ला शॉप। वो कहता है सर मैं जरा रसगुल्ले ले लूं, और वो देखता है सेठ ये रसगुल्ला खाने गया है। सेठ सारी दुकान खरीद सकता है लेकिन उसको डायबिटीज है। हाउ मिजरेबल ए पर्सन फील्स, ही हैज ऑल द रिसोर्सेज बट ही कैन नॉट यूटिलाइज देम। इसी प्रकार से श्री कृष्ण को दिखाते हैं कि मुंह के ऊपर माखन लगा हुआ है, और आज हमको डॉक्टर कहते हैं कि अगर जीना है तो ये चीज छोड़ दो जो हमारे पूर्वज प्लेंटीफुल यूज करते थे। और आज लोगों के हार्ट जो है आप जानते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही है कि हार्ट ही फेल ना हो जाए। तो कारण क्या है? ये देवी देवता भी देखते थे लेकिन वो उतना ही देखते थे जितना देखना आवश्यक है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। देवी देवता भी बोलते थे लेकिन वो उतना ही बोलते थे जितना आवश्यक है, नो सुपरफ्लुअस, ना कम ना ज्यादा। देवी देवता भी सुनते थे लेकिन उतना ही जितना आवश्यक है, अर्थात वो अपने जीवन में जो एसेंशियल और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करते थे। इसलिए उनको संकल्प सिद्धि थी, उनका मन परफेक्ट रहता था, सारी जीवन ही परफेक्ट रहती थी। आज हम उनको पूजते हैं तो हम ही वो, क्योंकि आप देखेंगे हमारे नाम देवी देवताओं के ऊपर ही हैं। किसी का नाम रामचंद्र होगा, किसी का कृष्ण चंद्र होगा, लेकिन सिर्फ नाम है। और इसी कारण से हम पुरुष भी अपना नाम सीताराम रख लेते हैं, राधे श्याम रख लेते हैं। तुम सीता हो या राम हो, पुरुष तो राम ही होता है। तो मतलब नेम सेक हम रखते हैं, देवताओं की मूर्तियां भी लगा लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, दीपावली में लक्ष्मी जी का पूजन कर लेते हैं, लेकिन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक। तो भाव इसका ये है, अगर हम अपने मन से वेस्ट नहीं निकालेंगे तो हम कुछ भी कर लें, मन कमजोर है तो आपके रिसोर्सेज काम नहीं आएंगे। रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भी व्यक्ति की विल पावर चाहिए, तो मन का लीकेज हमको प्लग करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि पहली बात है वेस्ट थॉट्स, फालतू का, जिस चीज से हमें कोई मतलब नहीं, लेना नहीं देना नहीं। और मन जब एक बारी आदी हो जाता है वेस्ट थॉट्स का, आप देखेंगे कि जिसको कहा जाता है कि जिस वक्त आप कोई चीज सोचनी चाहेंगे उस वक्त आप थके हुए होंगे। आप लोग जानते हैं टैट सिंड्रोम, टायर्ड ऑल द टाइम। भाव कहने का ये है कि जब हमें एकाग्र होना है तो हमारा मन भटकेगा, वैसे हम सोचते रहेंगे ये करेंगे वो करेंगे। उसी का रिजल्ट है कि रात को हमें नेचुरल स्लीप नहीं आती,
जानवर सो जाता है, जानवर नेचुरली सो जाता है, नेचुरली जागता है, ना वो घड़ी रखता है ना वो अलार्म रखता है। आज का मनुष्य जो इतना समझदार है, उसको नींद आने के लिए भी कई प्रोसेस करने पड़ते हैं और सुबह आंख खुलने के लिए भी प्रोसेस करने पड़ते हैं। इसका मतलब हुआ धक्के से हम चल रहे हैं। तो वेस्ट थॉट्स के बाद एक और चीज है पास्ट की थॉट्स। वैसे हम कह देते हैं लेट बाईगॉन बी बाईगॉन, लेट पास्ट बी पास्ट, बीती को बीती देखो, लेकिन जीवन के अंदर क्योंकि फुल स्टॉप लगाने का शक्ति नहीं है, तो हम पास्ट थॉट्स भी बहुत सारे करते हैं। हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कहता है साहब मीटर जीरो देख लो। हम कभी टैक्सी करते हैं तो कहता है साहब मीटर देख लो, पिछले वाले का आपको बिल नहीं देना है, जीरो करके जाते हैं। क्या हम अपने जीवन में हर थॉट के बाद मीटर जीरो करने की हमारे में शक्ति है, या हम उसको कंपाउंड सेंटेंस की तरह कॉमा, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? आप देखेंगे हमारे जीवन में कितने क्वेश्चन मार्क है फ्यूचर के बारे में, इसके बारे में, या एक्सक्लेमेशन है ये क्या हो गया, अब क्या होगा, कोरोना आ गया। आप देखेंगे हर साइन के नीचे एक फुल स्टॉप होता है, क्वेश्चन मार्क के नीचे भी होता है, एक्सक्लेमेशन के नीचे भी होता है। जब आपका आश्चर्य पूरा हो जाता है तो फिर वो फुल स्टॉप ही रहता है, जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाता है फिर फुल स्टॉप ही रहता है। लेकिन लगातार हमारे अंदर क्वेश्चन आदि उठते रहते हैं, इसका भी उपाय हम नहीं कर पाते। तो बहुत सारी थॉट्स पास्ट की, बहुत सारी थॉट्स फ्यूचर की, और प्रेजेंट उसमें जा रहा है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, है ना। जिसको कहा जाता है एक एक्सपायर्ड चेक है, एक फ्यूचर चेक है, जो प्रेजेंट है वो नहीं हम कर पाते। तीसरी बात है ऑर्डिनरी थॉट्स। हमें अगर श्रेष्ठ जीवन मिला है, हम संपन्न है, साधन संपन्न है, हम हर तरह से इस वक्त कुछ हायर परसूट कर सकते हैं, फिर हमारा जीवन ऑर्डिनरी क्यों होना चाहिए? तो ऑर्डिनरी मैंने साधारण, तो क्या हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑर्डिनरी व्यक्ति है समाज का या कोई विशेष व्यक्ति है? इसी प्रकार से उसकी थॉट्स भी जीवन बिताने की, जिसको कहा जाता है लिविंग टू ईट या ईटिंग टू लिव, तो वो कर रहे हैं, बस खुशी से भोग विलास में जीवन बिता रहे हैं, बस यही जिंदगी है, थोड़ा कंफर्ट मिल गया, तो वो हमारे वो भी नहीं होने चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो ये मेन बात है कि ये तो हो गया डिस्क्रिप्शन। नो व्हाट वी हैव टू डू। पहली बात है हमारे अंदर पावर टू कॉन्सेंट्रेट, जिसको हम एकाग्रता की शक्ति कहते हैं, वो घट गई है। आप देखेंगे हर व्यक्ति कहेगा मेरा मन भटकता है, मैं भगवान को भी याद करने लगता हूँ, मेरा मन भटकता है। अच्छा, क्यों मन भटकता है? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति का कोई फिक्स्ड एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है, एम एंड ऑब्जेक्ट वाले को इधर उधर का कोई ख्याल नहीं रहता। एक टेररिस्ट भी बम लेके जाता है, वो ये नहीं देखता मैं भीड़ में जा रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव, मुझे इस बम को लेके जाना है, तो इधर उधर का उसको दिखता ही नहीं है। पर आज हमने जीवन में एकाग्रता इसलिए खो दी है। पहली बात कि हम समझते हैं किसी किसी मौके पर एकाग्रता हो, और उसके लिए जिनको कंसंट्रेट करना पड़ता है, कि डॉक्टर्स है, मान लीजिए ऑपरेशन करना है, वो स्मोकर है, तो पहले जाके 10-12 सिगरेट पी के आएगा, अब मैं कंसंट्रेट करूंगा, अदरवाइज नहीं। और हम किसी किसी बात में कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन एकाग्रता तब आ सकती है अगर हम अपने जीवन में हर चीज पर कंसंट्रेट करें। कितना समय देना है, जो कुछ कहना वो दें, सोने के वक्त सो सके, जागने के वक्त जाग सके। बाथरूम में भी कहीं जाते हैं तो नहा के नहीं आ जाते, बड़े आजकल लग्जूरियस बाथरूम है, मैगजीन पढ़ते रहेंगे, बड़े समझेंगे हम बड़े खुशकिस्मत हैं, तो
इस प्रकार से हमारी हर खुशकिस्मती हमारे मन पे डिपेंड करती है. If I am rich, I start taking buying things which are out of season or which are imported, which are not useful for my health, simply because I am rich. वो जो सीजन की चीज होगी वो मेरे नाक के नीचे नहीं आई है, कुछ नहीं है. वही जब अनअवेलेबल हो जाएगी तो आई विल सीक दैट. इसलिए मन की डिस्टर्बेंस, उसके लिए हमको चाहिए एकांत. एकांत मीन्स अलूफनेस. इट डजंट मीन कि हम जाके अलग बैठ जाएं, किसी कमरे में बैठ जाएं, नहीं. इन ऑल सिचुएशंस हम अपने आप को एक अलग व्यक्ति समझें और उसके लिए चाहिए शांति की शक्ति. तो क्या हम ओरिजिनली आत्मा शांत है. कोई आदमी गुस्से वाला 24 घंटे गुस्सा नहीं कर सकता. कोई कितना भी बोलने वाला हो, वो 24 घंटे बोलता नहीं रह सकता. ओरिजिनल स्टेट शांति की है. इसके लिए हमें शांति की प्रैक्टिस करनी होगी. नॉट ओनली सेपरेटली फॉर सम टाइम, लेकिन हर चीज में हम देखें कि हम जरूरत से ज्यादा सोचते नहीं हैं, जरूरत से ज्यादा बोलते नहीं हैं. वो जो गांधी जी का उन्होंने सिंबल बनाया हुआ, हियर नो इविल, सी नो इविल टॉक, उसका भाव अर्थ यही है. इसलिए ये काम करना पड़ेगा. और दूसरी बात क्या है कि हमें दूसरों का कूड़ा करकट अपने मन में नहीं लाना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल हमारे अंदर नेगेटिव हैप्पीनेस की एक प्रकार की रोग हो गया है. अर्थात दूसरे के सुख देखकर हम दुखी हो जाते हैं, दूसरे को दुखी देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं. पड़ोसी के घर में नई कार आ जाए तो हम चर्चा करने लग जाते हैं. पड़ोसी के घर में पुलिस आ जाए तो हम चर्चा करने लग जाते हैं. तो इसलिए मन के अंदर जो आएगा उसकी हम देखेंगे इसकी वीकनेस क्या है, क्योंकि हमें अपनी भी वीकनेस देखने की आदत है, दूसरे की भी वीकनेस देखने की आदत है. तो पहले ही जो आएगा फर्स्ट इंप्रेशन में हम देखेंगे इसमें क्या कमजोरी है. आदत ही पड़ गई है. तो अपने अंदर भी हम कमजोरी ले आए हैं. मान लो हम एडमिट हो जाए हॉस्पिटल में तो हम ये नहीं सोचेंगे चलो कोई कर्म भोग है, हम सोचेंगे अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद क्या होगा, तो यानी वेस्टफुल थिंकिंग. तो उसका कारण है हम शुभ नहीं सोचते. तो जब हम अपने घर के बाहर लिखते हैं शुभम, तो शुभम का अर्थ क्या है, हम अपने मन के अंदर एक ही सिंपल चीज है और कुछ भी ना करें, हर एक के लिए शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें. वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं. हम चाहे तेरा भी भला हो, वैसे हम बोलने में कहते हैं प्राणियों का भला हो, इसका भला हो, इसका भला हो. प्रैक्टिकली हर एक का भला हो, हर एक का अच्छा हो जाए. अगर हम ये करते हैं तो नेचुरली वो नेगेटिव हमारे अंदर नहीं आएगा. लेकिन इन सब चीजों के लिए एक चीज हमें चाहिए जिसको कहते हैं शक्ति. नॉलेज इज वन पार्ट, एम्पावरमेंट इज वन पार्ट. तो इसीलिए हमने आज का टॉपिक रखा हुआ एनहांसिंग इनर पावर्स. अर्थात हम अपनी इनर पावर जो मैंने बताया डिप्लीट किस किस कारण से होती है उसको रोकने के लिए, बल्कि उसको एनहांस करने के लिए. अगर मान लो मुझे शुभ भावना, शुभ कामना का प्रैक्टिस करना है, मैं बुद्धि से मान भी जाऊं कि मुझे यही करना चाहिए, मेरा भी भला है इसमें, लेकिन हम दूसरे का, अपना मन साफ है, दूसरे की कमजोरी अपने मन में ले आए, 6 पड़ोसियों की इधर से कमजोरी ले आए, 6 पड़ोसियों की उधर से ले आए. मान लीजिए हम सुबह बकेट लेके जाएं और हर पड़ोसी को कहें अपना कूड़ा करकट मेरे बकेट में डाल दो. वो सोचेगा इसको क्या हो गया है. फिर वो कहेगा तुमने क्या करना है, मैंने अपना ड्राइंग रूम सजाना है. तो कहेगा ना ये पागल हो गया. परंतु हम मेंटली क्या करते हैं, हमें टेस्ट पड़ गया है कि दूसरे की बातों को सुनकर हमारे मन, जिसको मंदिर कहते हैं, उसमें रखना. तो फिर हम अपनी सफाई को भी बिगाड़ लेते हैं. और इस सब के लिए चाहिए एम्पावरमेंट. अब एम्पावरमेंट कैसे आए,
तो आज के जितने लोग एम्पावरमेंट करते हैं वो सेल्फ एम्पावरमेंट के तौर से करते हैं कि मैं अपने आप को एकांत में बैठ जाऊं, कोई प्रार्थना कर लूं, कोई मंत्र पढ़ लूं, या अपना लोकेशन चेंज कर लूं, लोनावाला चला जाऊं, या कुछ डाइवर्शन कर लूं। लेकिन अगर मैं एम्पावर्ड होता तो मैं इन वीकनेसेस में आता ही क्यों? कि जो व्यक्ति खुद रोगी हो गया है वो अपना इलाज कैसे करेगा? इसलिए मेन बात यह है कि हमें ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जो हमें एम्पावर कर सके, और जिसके अंदर ये सारी पॉजिटिविटी ही हो, और जिसका कार्य ही ये हो कि पॉजिटिविटी को दुनिया में लाना। तो आप जानते हैं, और कोई जैसे आप मोबाइल को चार्ज कर लेते हैं, ये चार्जर है, इसी प्रकार से आत्मा को, एक भाई ने कहा भी था कि मैं जब ब्रह्मा कुमारी में आता हूँ थोड़ी सी मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। ब्रह्मा कुमारीज आर ऑल्सो गेटिंग देयर बैटरी चार्ज फ्रॉम दैट सोर्स, व्हाई नॉट गेट इट डायरेक्टली? तो इसलिए हमें परमात्मा की याद, परमात्मा ओशन है, सारे गुणों का ओशन है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो गुण दाता है। पहली बात होती है जैसे सूर्य है, सूर्य संपन्न है, सूर्य को अपने लिए नहीं चाहिए कुछ, लेकिन सदा हीट और लाइट देता ही रहता है। परमात्मा को भी इसीलिए ज्ञान सूर्य कहा गया है। हम कहते हैं ना, हे भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो उसके साथ आत्मा को कनेक्ट करके, जिसको हम योग कहते हैं या परमात्मा की स्नेह भरी याद कहते हैं, उससे हम एक्चुअली ये इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं, अपना संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। इसकी विधि आपको गोदावरी बहन जी बता सकती हैं, और अन्य हमारे केंद्र भी बता सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग कह देते हैं मुझे सब पता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। अगर पता है तो भाई फिर अच्छे कर क्यों नहीं लेते हैं? सब कुछ करते हुए फिर भी हम टेंशन में हैं, तनाव में हैं, भय में हैं, चिंता में हैं, अनिश्चितता में हैं, असुरक्षा में हैं। क्यों है? इसलिए ये एक बहुत, मैं भी आपकी तरह सीए हूँ, मैं इसमें क्यों आया? यही सोचकर उस जीवन में मैं धन कमा लूंगा, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज करने का तरीका जो हम यहाँ सीखते हैं दूसरे भाई बहनों को भी सिखाएं, इससे बड़ा पुण्य भी क्या हो सकता है। इसलिए आप सब इन बातों पर विचार करें, और मैं समझता हूँ अब हम 3 मिनट के लिए शांति में बैठकर उस परम पिता परमात्मा को याद करें। थैंक यू एंड ओम शांति भाई जी। बहुत ही सरल शब्दों में, सहज शब्दों में आपने आज का ये विषय एक्सप्लेन किया, और डेफिनेटली हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। और जब हमारे सामने एग्जाम्पल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो हम जरूर ज्यादा प्रेरणा ले सकते हैं उससे। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स।
for formal vote of thanks, I hand over to Himanshu. Himanshu, Sneha. Yeah, thank you विपिन जी. ब्रिजमोहन जी एकदम सरल भाषा में आपने आपका प्रवचन दिया. जो अब तक हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में बैलेंस शीट सीखी थी, डेबिट क्रेडिट, आपने लाइफ की बैलेंस शीट हमको सिखाई, जहाँ पे आपने बताया जो एसेट है हमारी सत्यता, धैर्यता, गंभीरता, मधुरता, नम्रता होनी चाहिए. और जो हमारी लायबिलिटीज है आपने बहुत अच्छे तरह एसेट लायबिलिटी लाइफ की कवर की. और जो आज हमने सीखा कि हैप्पीनेस के वजह से हेल्थ एंड वेल्थ रहती है, नॉट उल्टा कि हेल्थ एंड वेल्थ की वजह से हैप्पीनेस मिलती है. तो मुझे पीके मूवी का मूवी आ गया. अभी तक जो हम सीख रहे थे, जो मान के चल रहे थे, पूरा उल्टा था जो आपने हमें आज सिखाया. और जो आपने हमको आज वेल्थ दी है, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए जो आपने शब्द बोले हैं, वो मैं बोल सकता हूँ फिनेंशियल वेल्थ जो हम लोग किसको दें, डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो कम होगी, बट जो आपने हमको जो वेल्थ आज सिखाई है, जो दी है, वो शेयर करने से मल्टीप्लाई होगी, बाद बाकी नहीं होगी, उसका गुणाकार होगा. तो मैं आशा करता हूँ सब हमारे भाई बहने जो आज ज्वाइन किए वो भी ये सारे जो आज सीखा है वो दूसरे के साथ शेयर करेंगे. फिर से एक बार धन्यवाद. और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा डेप्यूटी कन्वीनर ऑफ मुलुंड सीपी स्टडी सर्कल स्नेहा वरैया को to propose a well-deserved hearty vote of thanks to everyone. And before Sneha propose a vote of thanks to everyone, I personally give vote of thanks to Bipin bhai and Minal Bhabhi ji. उनका साथ सहकार हमको हमेशा रहा है. And Bipin ji और Minal Bhabhi. Yes, Sneha, back. I am handing over to you for vote of thanks. थैंक यू हिमांशु भाई. हमारे विचार और मन की शक्ति बढ़ाने की बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल बातें कही है राजयोगी सीए बीके ब्रिजमोहन भाई ने, लाजवंती दीदी ने और गोदावरी दीदी ने. जनरली हर बार हमारी मीटिंग के बाद हमारा टैक्स वगैरह का ज्ञान बढ़ता है, मगर आज की इस मीटिंग के बाद हमारे मन में दिवाली के दिए की तरह ज्ञान का प्रकाश फैल गया है और हमारा मनोबल बढ़ गया है, जो हमें आगे बहुत प्रेरित करता रहेगा. मुझे स्पिरिचुअल बातें करनी नहीं आती है, मगर इतना बोलना चाहूंगी मैं कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करे तो बढ़ती कहाँ है. उम्र को अगर हराना है तो शौक जिंदा रखिए, घुटने चले ना चले मन उड़ता परिंदा रखिए. मुश्किलों का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उनमें से हंसकर बाहर आना ये आर्ट ऑफ लाइफ है. आखिर में मैं राजयोगी सीए बीके ब्रिजमोहन भाई, लाजवंती दीदी, गोदावरी दीदी, ICAI प्रेसिडेंट निहार जम्बू सरिया, एक्स ICAI प्रेसिडेंट प्रफुल्ला छाजे जी, WRC चेयरमैन मनीष गड़िया जी का धन्यवाद करती हूँ. Thank you, Sneha. Just for the update of members, we are having physical meeting on Thursday. Shortly, we'll circulate the notice to all the members. All are requested to present Thursday evening. A speaker is Rajiv Luthia sir, and the venue is Maharashtra Seva Mandal. And we have seen our members always contributed to the WRC and central level. This time also we have our election on 3rd and 4th. So I request each and everyone to cast their vote, to promote, to ask other members to go and vote, and to support our fellow members in this professional cause of election, and support each and every Mulund candidate. Thank you, everyone. Yeah. We'll end the meeting, Bipin ji, with the permission of all. Perfect. I hope everybody has now enriched, and let Bhai Sahab has given a lot of thought. Let everybody has to have that thought in mind. Yeah. Thank you.